Friends, what is quarter one result update? Since a long time, we have seen that many investors face problem. They do not know which sectors are growing. They do not know where to focus. They are always worried whenever shares price are shoot up. And they are also worried whenever share price fall. Why? Because there is a missing clue where sector is heading towards. So quarter one result update is the part of our result update meet, which we do since long a decade every quarter, and we try to focus on those sectors which are growing. And yeah, we try to discuss each and every sector so that we can know that which sectors are growing, so where to focus, and which are even not growing, so which sector to avoid. Two sessions have already completed. Part one, we have already discussed about large group of companies where students presented their way. Second part was presented just last week, where they discussed about some sectors. Milind Gavadeji and Mr. Mazi from Ranchi have presented. So today's meeting is also presented by students. The difference between our previous meetings and today's meeting is that these meetings are not created or not presented by any analyst. Simple investor like you and me are going to put their thoughts about investment, about different sectors. So get ready to listen them. Okay. Right. So today, yeah, this is quarter one result update meet part 3 as we have written. Today we are going to cover metal index, healthcare index, capital goods. This all three sector would be covered by Mr. Amol. Telecom and utilities would be covered by Jackie. He's from Ahmedabad. Amol from Chennai. Consumer durable would be covered by Ashish. He's from Vadodara. And let me disclose you that all these three people have just learned stock market this year itself. None of the students presenting today are those students which are have learned since 5-10 years or investing since 20 years, right? So it will be a wonderful journey. Let us see. So before we begin, let me announce some of the upcoming events. Number one event is the new batch, which is going to get started from 24th September. We are going to learn together for next 3 full months, not only theoretically, practically discussing every time in query sessions and lots of assignments. So get ready for 3 months. Hope you have already downloaded the app and have started learning from the new app created by Profit From It. It's an interactive app. Before we begin, yes, if you have not still subscribed to this channel, subscribe the channel so that you may get latest update. Right? Come on, let us begin. How they have done the research, and let me introduce Mr. Hanumesh, who is from Bangalore. We met Hanumesh just I think 7 to 8 months back in a meeting in Bangalore. Hanumesh ji have learnt the art Good evening, of sir. analysis. Yeah, welcome Hanumesh ji. So now Mike Good is evening, with sir. you. Yeah, good evening. Yes, sir. Sir, it is not even 7 months. Actually, I completed in March end में हम लोगों ने Bangalore में किया था this program. Yes. Okay. तो कितना So टाइम it हुआ is अनुमेश? hardly 5 months. हाँ sir. Oh, just 5 months. Okay, good. Yes, sir. Yeah. So I'll start, sir. Yes, yes. Now Mike is with you. Okay. Right, sir. Hi everybody. My name is Hanumesh. I'm from Bangalore. I'm also just student like you, but yes, we took a little interest to learn more things. Just out of our curiosity helps us to know many more things.
Initially, I thought investing in a stock market is like it depends on your luck. But after actually going through the program, I realized that it is not an luck. It is purely an your education, your interest level to understand something, and then you will learn it, and then you will understand the right quality companies. So then that's how you make profit. It is not pure depends on your luck, or it doesn't depends on anything else. So that's been my experience. So I from Bangalore. I am also like you. I mean, into others. I work in a sales job, so it was equally difficult for me to make time and learn and all this. I think, and each one of us team members are from a different city, and we try to manage and to practice and do research and collaborate through, thanks to all this technology that helped us to connect and present it to you all. So I'll just start with the what actually we have it for you today. We have a plan to cover, as Piyush just introduced, I mean, the broader indices of metals in detail, the reason under metals and healthcare, the companies under that. So typically all these 7 indices we are going to do a research by our team members, and we are going to present to you. So the first person who will be presenting it to us would be Amol. So before I give it to Amol, I just wanted to give you a small story which I came across, and I thought it is very, very relevant for this occasion. There was a research which was done in 1870, which was 1970, which was by Stanford Marshmallow. There's a psychologist. So that's called a theory, which is Stanford Marshmallow. So what actually was the research which was done was, they gathered a age group of kids who are age group of 4 to 5 years, and they gave them the sweets whichever they like. It could be chocolates or marshmallow or anything, which cookies, whatever the kids like. So they gave it in a jar to in front of a kid in a one room, and they kept on their table in front in a glass jar, and they said, this chocolate is for you, you can have it, or you can have it only one, or you wait until I come back and I'll give you 2. So the teacher leaves the kid in the room and goes outside for some time and comes back and sees. So this experiment was done for many kids. So then there were some kids who were got tempted and actually ate the chocolate. There were some kids who actually controlled their temptation, because they realized by waiting for some time I'll get double more. So they control their emotions. So then kids who control their emotions got a reward as one more. So they got 2. So why I'm trying to tell you is that the research was not ended here. They studied these kids for the next 10-15 years. The kids who control their emotions actually became very successful in life, in becoming good people by managing their career well, and equally, successful in their studies and everything. So this is why I said about kids, is because this is the similar emotions we also as adults go through. We see the lot of ups and downs in the market volatility when we get tempted to book profit or book losses. If we wait, that's where the actually reward is. So with that, I will invite my team member, who's Amol from Chennai, to take us through the research what he has done. And typically Amol is also, he's working. I think I would rather leave it to Amol. Give a just brief introduction about you, and I'm sure it would be inspiring to see that everybody are very day to day. People who are nobody is from a stock market background, but people with normal people doing a lot of research and able to confidently talk about stocks. I think you will hear from Amol. Yeah, Amol, over to you. Amol, thank you, sir. Yeah, I can hear you. Can you hear me? Okay, great.
Yes. You want me to share the Excel? Yeah, sir. Once. Okay. Good evening, guys. So मेरा नाम अमोल है और मैंने मेटल, फार्मा और कैपिटल गुड्स पे रिसर्च किया है। जो भी मैंने क्लासेस से पढ़ा है उसके पहले मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। पहले तो स्टार्टिंग में मैं पीयूष सर, चिंतन सर और पूरी प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का थैंक यू कहना चाहूंगा कि उनकी वजह से ये रिसर्च मैं सीखा हूँ और इतने इजी वे से सीखा हूँ कि मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। मैंने भी स्टॉक मार्केट ये सब चीजें मैंने दोस्तों से ही सीखी है। तो बस उनके थ्रू ही सीख के, उनके थ्रू ही डीमार्ट अकाउंट निकाल के, उनके थ्रू ही इधर उधर पैसे लगा दो, इसमें लो इसमें बेचो, इस तरीके से सीखा। बट चलो थोड़ा बहुत लॉस भी किया, ये सब किया। बट बाद में यूट्यूब पे सर के वीडियो देखे, सर का रिसर्च देखा, जो एक्चुअली मुझे अच्छा लगा था कि नहीं वो एक्चुअल चीज है। किसी इसके इसके कहने पे ट्रस्ट ना करते हुए खुद का करो, खुद के हिसाब से करो, तो इनकेस कभी लॉस भी हुआ कौन से भी इमरजेंसी में तो भी उतना फील नहीं होगा। ये सब चीजें देख के फिर मैंने प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली को ज्वाइन किया और वहीं से ये सब रिसर्च सीखा है। तो उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा पीयूष सर, पूरी प्रॉफिट फैमिली को। एंड साथ ही में हनुमेश सर, मिलिंद गावड़े सर और संदीप वागले सर, इनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने भी इस रिसर्च के दौरान काफी हेल्प किया। मतलब स्टार्ट कैसे करना, अप्रोच कैसे करना, इन सब हर छोटे मोटे जगह पे उन्होंने बहुत हेल्प किया है। सो जो भी मैंने क्लास में सीखा है उसके बेसिस पे मैंने मेरे साइड से प्रेजेंट करने का ट्राई करूंगा। इसमें हो सके कुछ गलतियां भी मिल जाएंगी तो एडवांस में ही मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि मालूम नहीं क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि मैंने क्लासेस अप्रैल बैच में किया था, ऑनलाइन बैच में। तो क्लास खत्म होते होते सिर्फ जून जुलाई तक तो खत्म हुआ। उसके बाद सेल्फ जैसे सर गाइड करते थे उसके हिसाब से प्रैक्टिस वगैरह करते थे और ऐसे कुछ ये आते थे तो उनमें पार्टिसिपेट करके ऐसा रिसर्च वगैरह किया है। तो थोड़ा मेरे बारे में बता दूं, तो मेरा नाम अमोल कुशवाहा है और मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ और मेरा भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ही फैमिली में, ना ही रिलेशन में, कहीं पे नहीं, और ना ही फाइनेंस बैकग्राउंड का हूँ। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो बस वही सर से जो सीखा है और सीखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अगर शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्ट भी करना है, इसमें एंटर भी करना है, तो फाइनेंस बैकग्राउंड ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। जो भी चीजें सीखनी है सही तरीके से सीखो तो हम इसमें यानी पीसफुली उसमें भी सर्वाइव हो सकते हैं। ओके सर। सर थोड़ा फिट टू स्क्रीन करोगे यानी पूरा मेटल सेक्टर दिख जाए। जूम आउट कीजिए ना, वापस 75 कर दीजिए परसेंट में। तो फिर आपको दिखेगा नहीं, दिखेगा, चलेगा इतना? दिखेगा सर। हाँ ओके ओके। सर थोड़ा कभी भी ड्रैग राइट कर साइड ले लीजिए। जाना हो हाँ तो मेरे को बोल देना, मैं राइट साइड कर्सर ले जाऊंगा, बराबर? सर अभी कर दीजिए ना। तो क्योंकि नंबरिंग मेटल की सीरियल नंबरिंग की उतनी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कर दोगे तो आईसीआर एनपीएन। सर और भी थोड़ा मिनिमाइज कर लीजिए, 50 भी कीजिए ना तभी दिख जाएगा। अच्छा, मतलब कैसा लेकिन एक ही बहुत साथ छोटा हो पूरा जाएगा देखेंगे फिर। तो। एक मिनट, ओके। चलो और थोड़ा करता हूँ। कुछ फ्रेंड्स मोबाइल में देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ एक मिनट, थोड़ा चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं जितना बड़ा हो सके। एक मिनट। हाँ बस बस ये इतना भी बराबर है चलेगा मेरे सर, ख्याल। मतलब हाँ एकदम परफेक्ट है सर। ओके। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। सो पहला मेटल सेक्टर। सो मेटल इंडाइसेस, मेटल यहाँ पे जितने भी कंपनी है वो सिर्फ मेटल सेक्टर की जो 80% बिजनेस करती है उतनी है। ऐसे मेटल सेक्टर तो काफी बड़ा है। बट मेटल सेक्टर में जिंक आ गया, कोल आ गया, आयरन और स्टील आ गया, एल्यूमिनियम, माइनिंग, ये सब मिला के पूरा एक मेटल इंडाइसिस है। तो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए ओवरऑल ग्रोथ 10 ईयर में तो सिर्फ 7.43 है, तो जो कि हमारे इंडियन जीडीपी से भी कम है। तो अगर ऐसा थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो कंपनी इतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दिखा सकती। तो मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च के दौरान फाइंड किया है, तो मुझे लगता है इस सेक्टर पे ज्यादा कंसंट्रेट ना करते हुए जिनको लगता है कि नहीं तुम्हें मेटल में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्होंने एक दो मैक्सिमम 1 या 2% मैक्सिमम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी इस रिसर्च के दौरान जैसे मुझे पता चला कि जैसे ओवरऑल ग्रोथ इन सेक्टर का अच्छा नहीं है,
बट JSW स्टिल है, उस एक ही ने लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट ग्रो किया है 13% से। इवन दो शॉर्ट टर्म में भी 5 ईयर में भी देखा जाए उसका प्रॉफिट और सेल प्रॉफिट ग्रोथ 17% का है। और बस ये इसलिए इस JSW पे थोड़ा ट्रस्ट करके हम थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं JSW पे। बाकी कंपनियों का तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, किसका ये प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है बट ग्रोथ अच्छा नहीं है, किसी का थोड़ा डेट पेइंग कैपेसिटी अच्छी है बट उनका भी ग्रोथ उतना सही नहीं है। तो जिसका सेल्स ग्रोथ ही नहीं बढ़ रहा है तो बाकी चीजें उतनी मैटर नहीं करती, ऐसा मुझे लगा। तो मेरे हिसाब से JSW स्टिल उस पर सोच सकते हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट। सो फ्यूचर में भी देखा जाए तो मेटल की जरूरत तो हमेशा गिरती रहेंगी, बट ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस पे फोकस ना करते हुए और भी बहुत सारी कंपनीज है जो इमर्जिंग है, उस पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। सो सर नेक्स्ट मेटल, हाँ फार्मा पे। ओके ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, थोड़ा इसको शॉर्ट करोगे क्या 3 ईयर प्रॉफिट और ग्रोथ से? सो इसमें सभी का चीजें अच्छा कंसिडर हो जाएंगी। 3 ईयर से कर लीजिए सर, क्योंकि किसी किसी का 5 ईयर्स का डेटा नहीं है, राइट। मतलब अच्छा, वो 3 ये ईयर भी चीजें आ सेल्स जाए। ग्रोथ की प्रॉफिट ग्रोथ? अमोल, कोई भी कर लीजिए सर, सेल्स, ओके चलो दोनों में सेल्स से कोई ग्रोथ भी का, चलेगा। हाँ, राइट राइट, कि ओके, सभी फ्रेंड्स को एक ही विंडो में दिख जाएगा कि मतलब कौन सी ग्रोइंग कंपनी है और क्यों है, इसके वजह से। राइट। सो गाइस नेक्स्ट सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर उसको फार्मा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब इट इज अ मिक्सिंग ऑफ फार्मा कंपनीज, हेल्थ केयर सर्विसेज और बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब मिला के एक पूरा हेल्थ केयर इंडाइसिस हो गया। तो इसमें अगर इस रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला है कि कुछ जैसे सन फार्मा जैसी वो मार्केट लीडर है इस पूरे सेक्टर में। सन फार्मा हो गई, डेविस लैब हो गई, डॉक्टर लाल पात हो गई, ये थोड़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है और इनका लॉन्ग टर्म में भी देखा जाए तो ये भी डबल डिजिट में ग्रोथ किया है उन्होंने, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब चीजों में इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ किया है। तो इन पूरे रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला है, जैसे मैं पहले इसमें तीन इंडस्ट्रीज आती है फार्मा, जो कि ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, बट उसमें और एक नई इंडस्ट्रीज आई है जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज और बायोटेक्नोलॉजी, ये उनमें इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है। तो इस रिसर्च के दौरान ही बहुत सारी चीजें मुझे पता चली कि चलो ग्रोइंग में तो हम इन्वेस्टमेंट कर ही लेंगे, बट उसके साथ अगर हमने इमर्जिंग इंडस्ट्रीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फार्मा में फिर आते वैसे बहुत सारी कंपनीज है जो डबल डिजिट में ग्रोथ देती है, बट हमें थोड़ा बाकी के भी पैरामीटर देखना चाहिए, जैसे सेल्स के बाद प्रॉफिट ग्रोथ भी देखना चाहिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन और ICR और पेड अप इक्विटी। सो ये सब चीजों में डॉक्टर लेविस लैब वो मुझे अच्छी लगी मेरे रिसर्च के दौरान, सेकंड नंबर पे जो है सर। सो उसमें देखिएगा आप 10 ईयर में भी डबल डिजिट ग्रोथ है, 5 ईयर में भी है, इवन तो 3 ईयर्स में भी है, और उसका ICR भी सबसे बेस्ट है। मतलब ऐसे कोरोना जैसे कैसे भी सिचुएशन भी आ गई या फिर 2008 का भी क्राइसिस आ गया, वैसे सिचुएशन में भी ये कंपनी सर्वाइव हो सकती है, और ऑब्वियसली फॉल तो होंगी बट उतने स्पीड से रिकवर भी होंगी। तो फार्मा में तो मुझे ये चीजें लगी, बाकी के भी है जैसे अबाउट इंडिया, उसका भी ग्रोथ मुझे अच्छा लगा उसमें, और उसका ICR भी अच्छा ही है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डबल डिजिट का है। तो उसको भी हम थोड़ा बहुत सोच सकते हैं फार्मा में। बाकी कंपनियां भी अच्छी है बट हर इसमें इन्वेस्ट करना कोई मुझे तो भी लगा सही नहीं है। तो मेरे ओवरऑल इससे मुझे 2 कंपनी फार्मा में अच्छी लगी। फिर उसके बाद सोचा नेक्स्ट इस पे जाओ तो फिर बायोकॉन है नेक्स्ट, बोले तो बायोटेक्नोलॉजी में, वो भी एक हेल्थ केयर को बिलोंग करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी उसका भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखो ओनली 10% अभी दिख रहा है, बट अभी जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई उसमें देखो अगर 10 छोड़ के फिर 5 ईयर जाओ, 7 ईयर जाओ, तो उनका ग्रोथ बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली। पहले 10 में 10 था, 5 में 15 हो गया, 3 में 17 हो गया, और उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डबल डिजिट का है, और थोड़ा ICR है। बट अभी जैसे कोरोना जैसी सिचुएशन आ गई ना, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी दुनिया रिसर्च में लगी है कोरोना की। तो ऐसे इसमें हमारे इंडिया में बायोकॉन एक लीडर है ऐसे इसमें, तो आगे चल के हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये और इससे भी ज्यादा परसेंट से ग्रो होंगी इन टर्म्स ऑफ सेल्स
और सभी जो भी फैक्टर हम देखते हैं, तो बायोकॉन पे हम एक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में इस पे ध्यान रख सकते हैं, बायोकॉन पे, जिसका ग्रोथ भी अच्छा है। और एक इस रिसर्च के दौरान और एक नई इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में से पता चला है थायरोकेयर। उसका भी वो तो अभी बहुत सारे लोगों को मालूम ही होगा, जैसी बात है, कुछ हमें कुछ टेस्ट वगैरह करवानी पड़ती है, तो थायरोकेयर ऐसे लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहां से टेस्ट मिलते हैं। जैसे मैं मेरे एचसीएल में काम करता हूँ, तो मेरे एचसीएल का भी जैसे हम इंश्योरेंस होते हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उनका भी कंपनी के थ्रू इंश्योरेंस रहता है ना, तो हमारे कंपनी का भी टाइप थायरोकेयर से, जो भी हमारा फुल बॉडी चेकअप जो भी होता है, तो जो भी टेस्ट आती है तो इनके थ्रू ही आती है, थायरोकेयर के इससे। तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस में कंपनी का बिजनेस भी है, तो इसके थ्रू अगर ग्रोथ देखा जाए थायरोकेयर का, तो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में थायरोकेयर मुझे अच्छी लगी मेरे रिसर्च के दौरान, जिसका ग्रोथ भी डबल डिजिट है। इवन दो आईसीआर भी कंपनी ने अच्छा मेंटेन किया है और एनपीएम भी अच्छा मेंटेन किया है। तो ऐसा मेरा ओपिनियन थायरोकेयर पे था। तो इस रिसर्च के दौरान जैसे मैंने सर थोड़ा नीचे आइएगा, हाँ थायरोकेयर, हाँ हाँ, सो नीचे में आइए सर पूरा। ये थायरोकेयर यहाँ पे है। हाँ हाँ, और नीचे वो तो बता दिया सर। हाँ ओके वो तो ओवरऑल थायरोकेयर का होता है अभी। हाँ हेल्थ, बस सर। सो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में जैसा मैंने मेरे इससे लिया है, जैसे कि 3 साल में पूरी इंडस्ट्रीज 9% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, तो 7% से प्रॉफिट ग्रोथ है। 5 ईयर में 13% से है, तो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ 11 से पूरा इंडाइसेस से। और 10 ईयर में डबल डिजिट है, सेल्स भी प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट है। तो और एक ऐसा ग्रोइंग सेक्टर है, आगे चल के भी बीमारियां आते रहेंगी जाते रहेंगी, बट ये कंपनी बंद नहीं होंगी, इनका बिजनेस तो चलते रहेगा। तो फार्मा में अगर सोचना चाहे तो हम डेविस लेबोरेटरी पे सोच सकते हैं, जो कि एनपीएम, ये सभी फैक्टर में बेस्ट लगी मुझे रिसर्च के दौरान जो भी किया। और हमें बायोटेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज है उसमें बायोकॉन पे हम ध्यान रख सकते हैं, जिसका ग्रोथ अच्छा था, एनपीएम, नेट प्रॉफिट मार्जिन और आईसीआर अच्छा था। और एक थायरोकेयर जो कि मेडिकल हेल्थ केयर में आता है, तो उस पर भी हम सोच सकते हैं। वो भी एक इमर्जिंग सेक्टर है, जो कि अभी रिसेंटली चालू है, मैक्सिमम 3 और 5 साल हो गए। तो जिसमें मेट्रोपोलिस के भी बारे में थोड़ा बहुत सोच सकते हैं। मेट्रोपोलिस और इसको कंपेयर करो तो थोड़ा थायरोकेयर अच्छा लगा मुझे। तो मेरा व्यू तो इस पे रहेगा। तो जिनको भी इन्वेस्ट करना रहेगा, तो एक कुछ कंपनीज है इस पे सोच सकते हैं, जो कि पीसफुली यानी इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसा। सर नेक्स्ट, नेक्स्ट सेक्टर है कैपिटल गुड्स। सो अमोल, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस अनुमेश, है ना, अमोल की आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है लगता है। ओहो, ट्राई आई थिंक करो उनका कुछ देर माइक बाद। उन्होंने डिसेबल कर दिया है। यस ओके सॉरी, म्यूट हो गया था सर। अभी आ पा ओके, रहे हैं? यस अभी कंप्लीट है, राइट, कहिए। वो कुछ समय बाद ऑटोमेटिक म्यूट हो जाता है ना, ऐसे चले गए होंगे, याद नहीं चला। ओके ठीक है, सॉरी गाइज, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो कैपिटल गुड्स में अभी जैसे मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे पता चला है कि एल&टी एक अच्छी कंपनी है, बोले तो वो मार्केट लीडर भी है एल&टी, और उसका ग्रोथ देखा जाए 10 ईयर का ग्रोथ भी उसका डबल डिजिट ग्रोथ है। बट अगर आप जैसे हम कंपनी ढूंढते समय उसकी क्वालिटी भी ढूंढते, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन और आईसीआर देखोगे तो थोड़ा कम दिखेंगे आपको, बट ये एक्चुअली कम नहीं है, क्योंकि एल&टी कैसे मार्केट लीडर होने का कारण उनका डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है, जैसे कि रिलायंस का है। बहुत काफी लोग जानते भी होंगे, रिलायंस भी ऐसे डाइवर्सिफाइड है, उन्हें भी एल&टी में भी ऐसे काफी है, वो फाइनेंस में भी है, कंस्ट्रक्शन में भी है, और नंबर ऑफ सेक्टर में। इसके वजह से वो आईसीआर जैसे कैलकुलेट करते हैं ना, तो टोटल इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है, इसके वजह से आपको ये
थोड़ा कम लगेगा, बट अगर बट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा ग्रोथ दे पा रही, और हो सकता है उनका कोई एक सेक्टर भी नहीं चला तो बैकअप के लिए उनके अदर सेक्टर्स है, जिससे कि हमें लॉस होने की पॉसिबिलिटी कम कम हो जाती है। इसी रिसर्च के दौरान जैसे अभी काफी लोगों ने सुना होगा अदानी ग्रीन, इतने में काफी लोगों ने लगता है कि मल्टी बैगर जैसा रिटर्न दिया है। ओके, उन्होंने शॉर्ट टर्म में रिटर्न दिया है, बट अगर उसकी क्वालिटी देखी जाए ना तो अदानी ग्रीन उतनी क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है, बहुत ही कम है। जैसे आईसीआर देखा जाए, उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो बहुत कम है, बट एक ऐसा शॉर्ट टर्म ग्रोथ में बहुत बेस्ट है। बट हम इतना शॉर्ट टर्म में नहीं सोच सकते, पता नहीं ना शॉर्ट टर्म में चीजें कैसे रिवर्स आ जाएंगी मालूम नहीं रहेगा, तो थोड़ा क्वालिटी की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो अदानी ग्रीन को ना लेते हुए फिर इस रिसर्च के दौरान मुझे हैवेल्स और हनीवेल थोड़ी अच्छी लगी। हैवेल्स और हनीवेल इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखिए तो डबल डिजिट ही ग्रोथ है, शॉर्ट टर्म 5 इयर्स का भी ग्रोथ देखे तो प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट है, और इवन दो उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन और बाकी फैक्टर्स भी देखो क्वालिटी वाली तो अच्छी लगी मुझे। तो हम इस पे सोच सकते हैं कि ऑब्वियसली इनका कंसिस्टेंटली इनका सेल्स बढ़ रहा है, अब सेल्स बिजनेस बढ़ रहा है मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट में भी उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। और उसी दौरान और एक कंपनी जो पता, इससे थोड़ा बहुत हैवेल्स और हनीवेल के बाद में जो होगा एआई इंजीनियरिंग, ये भी थोड़ा, ये तो मैं इसके पहले मैंने टू बी फ्रैंक मैंने पहले भी नहीं सुना था एआई इंजीनियरिंग, में रिसर्च के दौरान ही मुझे पता चला कि नहीं एआई इंजीनियरिंग भी है और उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अच्छा है, शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा है, और इवन उनका क्वालिटी अच्छा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन और आशिया। तो इस रिसर्च के दौरान मुझे ये थोड़ी नई चीज पता चली। अगर ओवरऑल हम कैपिटल गुड्स पे भी अगर ओवरऑल देखें इनका 3, 5 और 10 साल में कैसा है, तो एक हम बोल सकते हैं कि एक इसका एवरेज ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली ये ग्रोथ ऐसा देखा जाए तो हमारे इंडिया जीडीपी से भी कम है, बट इनमें कुछ कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो मेरा सजेशन रहेगा, जैसे मेरे रिसर्च पे मैं कहना चाहूंगा कि एलएनटी में हम कर सकते हैं, जो कि एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और हनीवेल और हैवेल्स पे कर सकते हैं जिनका सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर। Excellent, Amolji. I think you covered it very nicely, and I think good. Thank you for enlightening us all. I think now I'll request Jackie ji, who will take us through. Jackie, आप हैं? Hello. Yes, Anumesh ji. Hello. Acha. So Jackie will take us through our telecom sector. Jackie, I mean, over to you now. Yeah, thank you, and thank you, Piyush sir. सबसे पहले I will just introduce myself. I'm J.K. Devaria. I'm working in hospital as a nursing educator. So first of all, I would like to give thanks to Hanumesh ji, who was continuously taking a follow-up for all these things, even though I was not having a time, but he has insisted me that you can do it and everything. And really, it was a great effort taken by Hanumesh ji, and thank you for that. So I have attended this training session from Profit, and the Piyush sir has taken. It was in last year. So I'll just tell about what was investment in my life earlier. So I was just thinking that by investing a few amounts and we will get a very good return in very short time. So I was just earlier I was doing a intraday, then somehow I have entered into the F&O also. Then I just attend this training session. So I realized that the investment is not like, or it cannot be made in one day. It's like you have to give time. So when you it's like a tree, when you जब आप इसको बोते हो तो it takes around 5 to 10 years to grow up. So same way it is also like that. So and one more thing that really after attending this training from last 1 year I have started my few amounts of investment in this thing, and my portfolio which was around minus 50%,
And by this training only, I have invested in good companies, and the portfolio which brings down to the minus 17%. So I had recovered almost 37%, more than 37% my portfolio, which was really helpful. Or otherwise, I don't know in which direction it would be. So I'm taking to the not wasting more time. I'm taking to the telecom industry. So in telecom, we can say that telecom industry is not growing from last decade. It's not growing well. So many companies, they are coming and they are going, like Reliance, we can say, Virgin. So बहुत सारी कंपनी आई हैं गई हैं इसमें. But the best company which we found is that Bharti Airtel, who has grown in the long term around 9.5%. And if you see the profit, but company's business has grown up. कंपनी का बिजनेस अच्छा बढ़ा है, बट अगर हम प्रॉफिट का कंपैरिजन करें तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है. सेम वे इन द मिड टर्म आल्सो एंड द शॉर्ट टर्म आल्सो. सर थोड़ा सा स्लाइड ले लेंगे राइट साइड. थैंक यू. So mid-term also the company has done a wonderful business. The business has grown by in short term also around 8.38%, and in mid-term also it is around 9%. So we can say that the company's business is consistently growing, but they are not able to convert it into the profit. So same way in Idea and Vodafone also. Sir, इधर ले लेंगे. So we can see that the profit is continuously in minus. So if you can see in Idea, so Idea has grown by 14.5% in his business. But in Idea there is one thing, that they have merged with the Vodafone. So due to this, I think the sales growth has increased. But if you see the profit again, the profit is not in good. They have in a negative digit, so which is not good sign. So even in the mid-term also, the sales growth, which is increased by the 5%, but the profit, even though they are able to convert into the profit around 4%, but that is not also good profit, or we can say it is not a good company to invest. It's not a multi-bagger, it's not a long-term investment company. So Idea and Infratel. So if we can say in short, invest करना है, there is a one company in which we can invest, that is the Bharti Airtel. But again, the company or the sector is not growing that much. उसका ग्रोथ सेक्टर का अच्छा नहीं है, प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग. तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट में कि इनका ग्रोथ अच्छा नहीं होने के कारण से हमें इस सेक्टर को अगर हम अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है. और अगर हमें इन्वेस्ट करना भी है तो वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 3% in this sector. That is also in we can say that Idea and Vodafone, they both have merged, so that's why they are growing. But Bharti Airtel is again a good company. They are able to make they are able to grow their business, but again they are not able to convert into profit, which is not a good sign. So this is all about the telecom sector. Can we go down utilities? Yeah. If we see in utilities, so in utilities also like NTPC, Power Grid, and the GAIL. So these three companies shall have grown up in very good condition. But again, अगर इसमें से हम देखें तो एक सबसे अच्छा है वो है GAIL, जिसने अच्छा परफॉर्म किया है. अगर हम NTPC का लेते हैं तो उनका सेल ग्रोथ जो हुआ है that is around 9%, and if you see the profit growth, so it is around 4%. So if you see the continuously in the long term, mid term, and the short term, the NTPC business has grown up around 8 to 9% every short term, long term, and mid term. But if you see about their profit part, they are not able to convert into good profit. So their profit has grown around 3%, average 3% continuously in long term, mid term, and short term. So that's not good. But the good company is the GAIL, who has
grown their sales around 11%. Even their long-term profit is also in double digits, that is around 11.7, almost 12%. We can say the sales of midterm growth about 5 years, so they have grown around 5.5%. So that is also okay, good. Not that much good, but it's okay. And if you see the profit of midterm of around 5 years, so it's थोड़ा सा slightly लेंगे right side 5 years, yeah. If you see this 5 years profit, so obviously this GAIL has done around 25 or 26% in midterm growth they have given. Even though their sales or their business has grown only by 5.5, but they are able to convert into or they are able to generate the profit of around 25.64%. And if you see the short term 1 year sales growth and profit growth also, थोड़ा सा slightly, तो हम उनका sales growth लेते हैं, तो it is around it is in minus 4.3% of 1 year short term growth, but their profit has grown somehow around 45%. So that is again, even though they are not able to do the business, so we can say that this is a quality company. It can give you the good return if you invest on this. So ultimately, the last thing is that the GAIL is the good company where you can invest in a utility sector. You can see the Adani, France, but it is not. These all are not good companies. Power Grid is there. Of course, they have grown by their profit has grown by 18.4%. Even we can invest in this also. But if you comparing this GAIL and Power Grid, I would suggest that the GAIL is more quality company than the Power Grid, where we can invest on this. So that's all about my presentation, sir. You, sir, or Hanuman, please hand over to you. If you can add on this. Yeah. Okay. Okay. So, yes, Hanumesh, you are there now. Take over. अच्छा, जाकी जी जब टेलीकॉम के बारे में बता रहे थे, see, I just wanted to add, telecom is a growing sector, but if they are not converting it to numbers, it is because of the AGR issue, which I think everybody is aware of. So because of AGR calculation, so these people are made to pay some heavy penalty, which they had not provisioned, but still Airtel has made most of the payments, and they've got to pay the balance amount in a long term, so which I think will be taken care going forward. But there is a good growth in the telecom sector. That's what I wanted to just reiterate on that. Yes, Anumeshji, this 17.33% growth in the sales of Airtel is seen after a very long time. So sale demand has been upsurged. So we should not immediately jump right now, but now it should be in our radar that okay, let us track Bharti. If they are able to convert the sales into profit, then they will do magic right now. Okay, so now let me go to next presenter, Anumeshji. I think the presentation are completed, na? Utilities is completed. Okay. Yeah. So I think we will have now the last presenter, Mr. Ashish, is from Vadodara. Ashish ji, आप सुन सकते हैं? Hello. Yes, Ashish ji. Yes, sir. आवाज सुन आ रहा है आपका? Yes, sir. First of all, I want to introduce myself. I am Ashish Prajapati from Vadodara, and I am doing a business. मैं अपने बिजनेस में से टाइम निकाल के एक अलग से रिसर्च कर रहा हूँ, और इसमें आई वुड से थैंक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल पीयूष सर एंड देयर स्टाफ एंड हनुमेश सर ऑल्सो, के हु आर गाइडिंग मी सिंस लास्ट 20 to 15 days, यानी कि वो हमें एक मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको कैसे कैसे रिसर्च करना है, कैसे नहीं करना है। और दूसरा के पीयूष सर है,
पीयूष सर भी हमको ये सब चीज़ों का कितने आफ्टर कंप्लीटिंग अवर कोर्स दे आर सपोर्टिंग अस अ लॉट, कि उनके पास जो भी नॉलेज है तो दे आर प्रोवाइडिंग अस वेरी ऑनेस्टली, दे आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम अस, कि वो एक चीज़ बहुत बढ़िया हमें सीखने को मिली। और उसी वजह से आज हम लोग अ, उनकी वजह से ही हम लोग आज सबके सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। मेरा प्रेजेंटेशन का एरिया है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये करीबन इंडिया में देखने जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख करोड़ की ये पूरी इंडस्ट्री है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की। सर वो शीट कर दीजिए। यस, बराबर है सर। बराबर है सर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की अगर देखने जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है पूरी। अगर इसमें देखने जाए ना तो मैक्सिमम हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सब लोग, सब कंपनीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज कंपनीज है, लेकिन इसमें 20% ऐसी कंपनीज है कि जो यहाँ पे शो नहीं की गई है, जो इधर अनऑर्गेनाइज है या फिर उनका ये इंडस्ट्री में पार्ट बहुत कम है। तो कंपेटिवली यहाँ पे जो देखने जाए तो ये इंडस्ट्री एवरेज हम यहाँ पे देखें तो 14 से 15% से ग्रोथ हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर रिसर्च करने के बाद ऐसा देखने को मिला है कि इनका एवरेज ग्रोथ जो है वो 14 to 15% है, और उनका जो प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग देखने जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज 20% आ रहा है इनका। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि ये पूरे इंडस्ट्री में हम लोग देखने जाए तो टाइटन एक ऐसी लौती कंपनी है कि जिसका 47% मार्केट शेयर है। तो एक टाइटन कंपनी बेहतरीन उसके लिए लग रही है क्योंकि उनका जो ग्रोथ है वो 16% से ग्रोथ हो रहा है पूरा सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाए हम लोग तो 21% से हो रहा है। तो यानी कि ये बहुत बढ़िया सा वेल्थ क्रिएट कर रहा है। और शायद हमें मालूम है तो राकेश झुनझुनवाला का हमने सबने नाम तो सुना ही होगा। तो उनको जो वेल्थ क्रिएट करके दिया है तो वो एक टाइटन शेयर है। तो इसका अगर हम लोग एनपीएम देखने जाए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी एक बढ़िया सा है, और ईयर ऑन ईयर ये भी बढ़ रहा है क्योंकि इनका मार्केट पेनिट्रेशन इतना बढ़िया है कि ये लोग पूरे पान इंडिया में स्टोर्स खोल रहे हैं। फास्ट ट्रैक है या फिर टाइटन के बहुत सारे स्टोर्स अवेलेबल है या फिर तनिष्क है, और इनका आईसीआर भी बहुत अच्छा है। और आईसीआर की वजह से डेप्थ डेप्थ नहीं होने के कारण से इन लोग का ग्रोथ जो प्रॉफिट है वो इजीली कन्वर्ट हो पा रहा है। सेल्स में से प्रॉफिट है जो इजीली कन्वर्ट प्रॉफिट में हो पा रहा है। तो इसकी वजह से देखने जाए तो इनका ग्रोथ बहुत बढ़िया है। और दूसरी टाइटन में सबसे बेहतरीन चीज़ देखने को ये मिली है कि टाइटन अपने ब्रांड के लिए बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि 1999 से 1999 से एक हर साल ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि एक नई नई ब्रांड लॉन्च करे। पहले इनिशियली इन लोगों ने सोनाटा लॉन्च किया, उसके बाद में फास्ट ट्रैक लॉन्च किया, उसके बाद में आई प्लस, बाद में ये लोग एसेसरी में आए हैं, बाद में इन लोगों ने परफ्यूम लॉन्च किया। यानी कि आशीष आपकी रही है। हेलो, यस, अभी आ रही है आवाज? हेलो। हाँ हाँ आ रही है आशीष, आप हाँ, यू कंटिन्यू। यानी कि इसमें क्या हुआ है कि जो टाइटन है तो सर आशीष। उन, हाँ, उनका ग्रोथ इतना बढ़िया क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इनका एक एग्रेसिव मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट हर साल एक नई ब्रांड, टाइटन ब्रांड के नीचे एक नई ब्रांड लॉन्च कर रहा है। यानी कि इतने सालों से वो लोग मिनिमम 2 साल में एक ब्रांड तो नई लॉन्च करते ही करते हैं, या फिर कोई नया बिजनेस एक्वायर करने का ट्राई करते हैं। तो उसकी वजह से टाइटन का जो मार्केट शेयर है, मार्केट पेनिट्रेशन है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो एक बेहतरीन ये चीज़ लगी कि टाइटन में मैनेजमेंट उनका बहुत एग्रेसिव लगा, और उसकी वजह से प्रॉफिट को वो लोग, ग्रोथ को वो लोग प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये चीज़ एक बढ़िया लगी। अगर सेकंड दूसरी कंपनी देखने जाए तो इसमें एक दूसरी कंपनी है वोल्टास। क्योंकि वोल्टास में ऐसा है, ये टाइटन की टाटा की ब्रांड है वोल्टास। तो
वोल्टास में एक चीज ये है कि इंडिया में जो 4 एसी बिक रहे हैं उसमें से एक एसी वोल्टास का है। अभी फिलहाल भले उनका ग्रोथ 5% है, अगर देखने जाए तो 5% का ग्रोथ है, लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि इंडिया में अभी एसी का कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ना चालू होने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन के साथ जो हमारी कंजम्पशन कैपेसिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, परचेसिंग पावर है वो भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से जो एक कंपनी बढ़िया है तो है वोल्टास, क्योंकि उनका ग्रोथ देखने जाए तो 10 ईयर का ग्रोथ 5% है। अगर 5% आ रहा है और उसमें से देखने जाए तो वो लोग ग्रोथ को प्रॉफिट में भी इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इस साल का क्वार्टर का रिजल्ट भले ही खराब रहा उनका, माइनस में रहा, नेगेटिव में रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि स्टोर सारे बंद थे इनके, तो उसकी वजह से वो लोग सेल ही नहीं कर पा रहे हैं। पूरा सेक्टर देखने जाए हम लोग तो पूरा सेक्टर नेगेटिव में है। इसका रीजन ये है कि इनके सबके जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है उनके सबके आउटलेट मैक्सिमम 60 डेज तक बन रहे हैं, 40 to 60 डेज तक सब लोग बन रहे हैं, तो उसकी वजह से ये लोग ज्यादा सेल नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी देखने जाए तो धीरे धीरे करके ये लोग अभी पूरा इनका जो सेक्टर है अभी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। यानी कि वोल्टास एक इतनी बढ़िया कंपनी है कि उनका एनपीएम भी बढ़िया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने जाए तो भी बढ़िया है, और आईसीआर भी इनका अच्छा है कि डेप्ट पेइंग कैपेसिटी वो भी इनकी बढ़िया है। तो इसकी वजह से हम देखने जाए तो ये भी एक बढ़िया लगी हमको कंपनी कंपेयर टू वर्लपूल। क्योंकि वर्लपूल में क्या हुआ है कि वर्लपूल ऐसी प्रोडक्ट्स बनाती है, लाइक वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, तो ये ऑलरेडी इंडिया में पेनिट्रेट हो चुका है। यानी कि लोगों ने वॉशिंग मशीन और फ्रिज ये सब बहुत लोगों ने ले रखे हैं अभी। तो ग्रोथ अभी किस में होने वाला है? तो ग्रोथ अभी लोगों के पास एसी अवेलेबल नहीं है, चाहे वो ऑफिस हो या फिर होम घर में हो, कोई भी जगह पे हो, तो एसी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो लोग अभी क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये लोग मैक्सिमम एसी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उनका फ्यूचर ग्रोथ बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी दूसरी एक चीज़ इसमें देखने जाए तो एक राजेश एक्सपोर्ट्स है। राजेश एक्सपोर्ट्स का भी मैक्सिमम 7% का इसका वेटेज है पूरे सेक्टर में। लेकिन इनमें हो क्या रहा है कि ये लोग जो है इनका ग्रोथ भले ही 27% दिख रहा है और 20% उसका 20% उनका प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन हो क्या रहा है इनका जो एनपीएम है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो सिर्फ 1% है, ओनली 1%। तो ये थोड़ी बढ़िया बात नहीं है, क्योंकि हमको देखना क्या है एज एन इन्वेस्टर कि भले ही सेल्स कम हो या फिर प्रॉफिट प्रॉपरली एडजस्टेबल होना चाहिए। अगर धीरे धीरे कंपनी जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतनी पुरानी कंपनी होने के बावजूद भी इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 1% है। तो ये एज एन इन्वेस्टर ये हमारे लिए सही नहीं है। तो कंपेरेटिवली देखने जाए तो इससे अच्छी बेहतर रहेगी टाइटन, क्योंकि टाइटन अपने ग्रोथ को सेल्स में और सेल्स को प्रॉफिट में इजीली कन्वर्ट कर पा रही है, तो उसकी वजह से टाइटन बहुत बेहतर रहेगी। और दूसरी है वोल्टास। अभी दूसरी तीसरी कंपनी देखने जाए तो टीटी के प्रेस्टीज है, तो इसका भी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अप्रोक्सीमेटली देखने जाए तो 4% कंज्यूमर ड्यूरेबल में इसका भी शेयर है। लेकिन फ्यूचर में इसकी भी बहुत बढ़िया डिमांड होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग हाउसवेयर के आइटम्स 100% खरीदने ही वाले हैं, या फिर स्टील के वेयर्स हो या फिर घरेलू कोई भी चीज़ के हाउसवेयर आते हैं वो सब लोग टीटी के प्रेस्टीज के ब्रांडेड ही लोग खरीदते हैं। तो उसका भी देखने जाए तो 15% उसका भी ग्रोथ है, 15% उसका ग्रोथ दिखाई दे रहा है और 14% उसका दिख रहा है प्रॉफिट का ग्रोथ। यानी कि ये लोग अपने सेल्स को प्रॉफिट में इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और उनका देखने जाए तो अच्छा एनपीएन भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 9% है, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है। और आईसीआर देखने जाए तो आईसीआर भी 46 है, यानी कि पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन आईसीआर है। इनकी डेट पेइंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया है और आरओई भी बहुत अच्छा है। तो एक हम लोग पूरे सेक्टर में देखें तो हम लोग 3 कंपनी पे ज़्यादा भार दे सकते हैं,
पहले नंबर पे आती है टाइटन, सेकंड पे आती है वोल्टास और थर्ड पे आती है टीटी के प्रेस्टीज। तो ये तीन कंपनी एज पर माई रिसर्च ये तीन कंपनी हमको बढ़िया लगी, क्योंकि जैसे जैसे हमारा परचेसिंग पावर बढ़ने वाला है तो वैसे वैसे करके हम लोग क्या करेंगे कि जो रूरल रूरल एरिया में जो लोग हैं वो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, अर्बन में आ रहा है, और अर्बनाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है तो उसकी वजह से परचेसिंग पावर भी हमारा बढ़ रहा है। तो जैसे परचेसिंग पावर बढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये सब चीज़ों का भी यूज़ करने ही वाले हैं। बस सर, एज पर माई रिसर्च मैंने इतनी चीज़ें फाइंड की है सर। नाउ ओवर टू यू सर। अरे आशीष जी, आपने तो बढ़िया किया। बिलीव मी, आई थिंक यू डिड रियली गुड जॉब। जस्ट आप एक जगह पे, आई थिंक राजेश एक्सपोर्ट्स के यहाँ हाँ वहां पे इट इज बिकॉज ऑफ दी दे हैव अ ह्यूज डेट, एंड हाँ हाँ। उन्होंने बेसिस साइड पे भी हम लोगों को क्लियरली नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने जब एनुअल रिपोर्ट में देखा उनका बड़ा ज्यादा डेट है। उन्हें पूरा डिस्क्लोज नहीं किया था, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं था, इसलिए we thought ओके it was left blank, but there is a high debt with Rajesh Exports. ओके ठीक है, ओके तो सर। इसीलिए we have avoided, we should avoid such companies, ओके ओके सर। ओके सर। right? आप ओके सर। मेरे ख्याल से आप यही कह रहे हो ना अनुमेश जी, Yes sir. कि जो हर साल जैसे ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का डेप्ट है, 3-4 हजार करोड़ इस साल डैश है, और इसका मतलब ये नहीं है कि डेप्ट फ्री है, बराबर ना, They have a debt, देता but नहीं है। they did not disclose clearly. राइट, करेक्ट करेक्ट, गुड। Right, sir. To just to summarize what Amol, Jackie, and Ashish have presented, I think to sum it up, I mean the growing sectors, the across all the 7 indices we did, 7 sectors. So we see that healthcare is a very growing sector, and we see a lot of companies. I mean, उभर के आ रहे हैं यहाँ से, I mean, where they are going to do outstanding performance, and even in some consumer durables and telecom. So these are the sectors we think that these are the growing sectors from here on, considering all the changes what we have seen in the trends and after the pandemic. So this is the Nifty 50s, the chart. I mean, I'm trying to show. अभी तक till now you have seen everybody's fundamental analysis on the each of these stocks. So I mean, or the sectors and each companies. So we are trying to just show you, I mean, how on the chart, I mean, these uh, the indices are reflecting. So if you see, Nifty 50 has already retraced 80% from where it was in the March. So it is already a V shape of recovery we have seen clearly, and from its top, I think it has recovered already to 80, a little above the 80 percentage. And the way that it looks like, I think it can be uh, will continue the same trend in the Nifty 50. Can we go to the next slide, sir? Yeah. So here I was trying to show the when we were saying some sectors are not growing. It is just to show you, I mean, how has been this metal indices been doing. So if you actually see, the metal indices has not grown anywhere from last decade. I mean, it has been hovering between I mean, up and down. So not actually you will make a money in the long run. You will have to time the market. You will have to entry at, I mean, which practically very difficult. You will have to exit at certain levels. Otherwise, you will not really make a wealth in the metal sector. So that's the reason you will have to be very cautious in which sector you are investing and which kind of companies you are investing. Yeah, next slide. Yes. So here we are into pharma. So pharma, you are clearly seeing that the how it has the in tough times how the pharma has actually started growing. But if you actually see
for the last 5 years, pharma was in degrowing. If you see from 2015, 2016, so it was actually degrowing. But now the cycle it is in the recovery phase. So now it is completely going at a vertical growth. You are seeing a very good growth in the pharma sector, especially some of the healthcare services and all are doing it phenomenally well. So that is yielding to the growth. And especially, I mean, the current COVID situation also, I mean, pharma has a very strong role to play, and that's also helping the pharma sector to see that extra growth compared to the other industries, because the demand here is very high. Coming to yes, yeah. So consumer durables. So you can see here consumer durables. The consumption in India has been growing. So incomes levels are increasing. So that's the reason you see that the consumption industries, consumer durables is really a growing industry. I mean, this is a good industry to invest in, and you will see a lot of companies from this sector will come into Nifty. So these are good growing companies, and you will also see that the already it is retraced. The consumer durable is out for farmer, as well as it's already, this is also, I mean, recovered almost around 80% to the pre-COVID levels. So some of the companies which I was talking to you about in the healthcare, so Dr. Path Lab, Lal Path Lab, so you can see, I mean, how the company has been doing. So from 2016 now you're seeing that it's continuously it is growing from last the 2019 onwards. I think you can see that it is completely vertically it is growing. So because this is in the sector where the it's a very high demand company. I mean, it has given a breakout in 2019 in that range. I mean, it's from there. I mean, it is already seeing it is making its higher high every time, to month on month. So only the last month, I think, that is it did not made its a higher high, but you are seeing that it's actually showing a good growth. Yeah, there's one more company which is again in the pharma and healthcare, biotechnology, Biocon. See, Biocon is also, I think, you are seeing one of the best companies in both managed well as well as very high demand growing company sector as well as company. So you see that you are going to create a good wealth here because of the phenomenal growth it is showing. So you are seeing that even in the current situations, current pandemic situation, these companies are making high in the market. So these are the best companies to look at for investment. Yeah, again, Titan, I think Ashish covered it very well. I mean, this Titan is launching every new product depending on the need of the market. So they do a lot of research in the market. They understand. They came up with the new products every time in the market whenever there was a need. I think I recently saw a new ad from Titan where they have given a payment option through their watches. They have so that's a new trend. So that's how a company will be relevant. Otherwise, if you continue to sell those old wrist watches, I think nobody is interested. So the Titan has been innovating itself along with the public demand, and that's where the company is also been growing. So here also, I mean, I think there is a little recovery has been a little slow. It is because of nothing but their stores were closed for such a long time because of the pandemic situation. So, but now most of the stores have opened. Most of the locations were in lockdown.
So now I think you will see the demand in the Titan also will pick up, and they have a very right approach towards the market. I mean, they are launching a new product which is very relevant, so which is creating a good demand. And I have seen so many people giving very good response on their new product. So I'm sure the Titan will continue to do well in terms of product innovation, and their quality is absolutely one of the best in terms of all fundamentals which Ashish took you through. So that Biocon we discussed. Yeah, just to sum it up, I think these are the companies which are growing companies. Davis Lab, Biocon, Dr. Alpat Lab, IGL, from Voltas, Gale, Titan. So these are the growing companies which are wealth creators. So one can invest in these companies. Fundamentally these are very good quality companies. So you can make money and more peacefully then. But you should look for a long-term investment horizon, not trying to make money in the short run. So that has been our the analysis. Thanks to you, everybody. Thanks for hearing, and especially thanks to Profit from it and Piyush ji. I think you actually made us very confident to talk about many things. Otherwise, earlier we used to think that some people do magic, but thanks to you that you made us to understand what are the right things to look at in a company or a sector. So that's it from my side. And if anybody has a query, I think we'll be happy to take. Yeah, so wonderful, Hanumesh. You have done a very good job. And so see, you all are busy. You were busy, Jackie was busy, Ashish was busy, but everybody took their time for research. You did it, a good presentation. Right? I think, yeah, that's good thing that you did research on your own. You were able to find out the company. That's all. What do we want? है ना? हम यही तो चाहते हैं, अच्छी कंपनी ढूंढे, निवेश करे, वेल्थ क्रिएट करे, राइट? किसी पे डिपेंड ना रहे, जो आप लोगों ने किया। तीनों लोग बढ़िया काम किया आपने। आशीष अच्छा आपने प्रेजेंट किया, जैकी वंडरफुल रिसर्च। भाई आप तीनों के ऊपर जो भी आपने सेक्टर बताए, वो सेक्टर पे, कंपनियों पे अगर मैंने भी रिसर्च किया होता तो यही कुछ कंपनियां जो आपने ढूंढ के लाए हैं वही कंपनी मैं ढूंढ के लाता, राइट? आपने वोल्टास बताया, देखो 10 साल पहले मेरे को भी वोल्टास मिला, मैंने वोल्टास में निवेश किया। आपने टाइटन बताया, मुझे 10 साल पहले टाइटन मिला। आईजीएल या एमजीएल या गेल, इनमें से एक आधी कंपनी में निवेश कर सकते हैं, आपने भी वही बोला। तो रिसर्च क्या है? जब आप अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहते हो, आपको दो चीज चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए, राइट, और ग्रोथ होना चाहिए। आपने कुछ सेक्टर देखे जहां सीमेंस जैसी क्वालिटी कंपनी है, पर अगर ग्रोथ नहीं है तो खाली कंसिस्टेंट डिविडेंड आएगा, पैसा बनेगा नहीं। हमें दोनों चीज चाहिए, योर सेक्टर शुड बी ग्रोइंग and your company should be quality, that he should be able to convert the sales into profit, right? तो क्या होगा? हम निवेश करेंगे और आने वाले समय में पैसा बनने ही वाला है, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। तो आपकी इसी प्रेजेंटेशन पे मैं चाहूंगा, यहाँ पे जय किशन जी हमारे बीच हैं। जय किशन जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Hello. Yes, Jay Kishan ji, welcome. How are you? Good, very good, sir. How about you? एकदम फाइन, फाइन। देखो जय किशन जी, आपने मुझे बोला कि आप कैसे हो। अभी जिनके स्टूडेंट ऐसा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, वो तो सातवें आसमान पे ही होगा ना। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई विल लाइक टू आस्क यू सम, कैन आई? Yes, sure, sir. Okay. All the three people, मेरे ख्याल से आशीष और जैकी ने यहाँ पे प्रेजेंट किया, अमोल ने प्रेजेंट किया, वंडरफुल। तो इन्होंने जो अलग अलग सेक्टर लिए, अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको लगता है कि मुझे भी इन्वेस्ट करना है, तो मुझे सही बताइएगा, इन सेक्टर में से आप कौन सा सेक्टर पसंद करते और कौन सी कंपनी पसंद करते, राइट? जो इन्होंने बताई वो, कि आपके हिसाब से कुछ और है। मैं यहाँ सारे सेक्टर मैंने यहाँ पे लिखे,
यस, आप अपनी राय रख सकते हो जय किशन जी। सर इन सेक्टर्स में लाइक जो बेस्ट है वो मेरे को हेल्थ केयर ही लग रहा है। हेल्थ केयर एंड टू ए सर्टेन एक्सटेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और प्रैक्टिकली मैं यही दो सेक्टर देखता और इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज चूज करता टू इन्वेस्ट इन। हेल्थ केयर में डेविस लैब्स नंबर 1 चॉइस, और अभी जो चाइना के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है, एपीआईज का अगर प्रोडक्शन इंडिया में आता है और वो लोग अपनी कैपेसिटी ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर हमको और इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि लिए उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा। और वहां से अगर 3 to 5% भी अगर चाइना का इंडिया में शिफ्ट होता है, इसीलिए डेविस अपना कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल कर रहा है। So Davis would be my number 1 choice, definitely in this thing. And as Hanumesh ji and the other presenters who presented, like they said, Dr. Lalpat Lab is again in healthcare services, and it has got very good technology which they are using, and it is a debt free company. और अभी कोविड के वजह से they'll be looking to capitalize on other small unorganized players and bringing them under their umbrella. So Dr. Lalpat में भी ग्रोथ मेरे को दिख रहा है। ओके, तो ये कंपनियों में आप निवेश करोगे या किया होगा, बराबर ना जय किशन जी? हाँ जी। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगर निवेश करना हो तो कहाँ करोगे आप? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मेरा जो प्रेफर्ड कंपनी है इज पेज इंडस्ट्रीज, और द रीजन फॉर पेज इज बेसिकली रीजन फॉर पेज इज दैट वो एसेंशियल्स बनाता है, जॉकी का ब्रांड है, so they've got a very good brand, essential है, and it is basically everyday use का कपड़े बना रहे हैं वो लोग, quality is excellent, and the thing is जैसे buying capacity इंडिया में बढ़ेगी, this would be one of the brands which will grow. और again कोविड के वजह से इनका जो उनके कॉम्पिटिटर्स थे और पेज इंडस्ट्री में ये डिफरेंस रहा कि कॉम्पिटिटर्स का ये प्रॉब्लम हुआ कि दैट दे कुड नॉट एक्सटेंड मच क्रेडिट, बट पेज इंडस्ट्रीज अपने डीलरशिप चेन को एक्सटेंड कर सका एक्स्ट्रा क्रेडिट, क्योंकि they were cash rich and they were debt free. Yeah, correct. So we can take the benefit of current fall in the page, right? Right now also I think page is trading around 25% discount. So it Yes. would be right time for SIP, है ना? हाँ जी सर। Yes, yes, wonderful, wonderful. Thank you very much जय किशन जी, आपने जो अपना एक्सपीरियंस का बेनिफिट दिया आशीष को, हनुमेश जी को, अमोल को, राइट, जैकी को, सो वंडरफुल। ये लोग भी और बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आपका जय किशन जी। थैंक यू सर। मैं और एक सवाल पूछना चाहूंगा मिलिंद भाई को। मिलिंद बिड़वे जी, आप हो ऑनलाइन अभी? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। यस मिलिंद भाई, गुड इवनिंग। कैसा है Yes, sir. कोरोना अभी? हाँ, कोरोना सर पुणे में बहुत खराब कोरोना का हाल पुणे में बहुत खराब है अच्छा। सर। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी नहीं रह रहे अभी, मतलब बहुत 25% डॉक्टर्स को ही कोरोना हो गया। अरे रे 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 रे, बुरे हाल है उसके। ओके Yes, sir. ओके, तो आपका हेल्थ कैसा है अभी? रिकवरिंग सर, अभी काफी पहले से 50-70% अच्छा है सर। ओके ओके, चलिए बढ़िया बढ़िया, वंडरफुल। रिकवर हो जाइए एकदम बढ़िया, अच्छे ताजा वाजा Yes, पहले sir. थे। तो
कि अपनी Yes, sir, हेल्थ भी yes. करेक्शन मोड में है, वो भी लाइफ टाइम हाई लगानी चाहिए, है ना? नहीं नहीं सर, ब्रेकआउट आना चाहिए। 2-3 दिन नहीं सिर्फ, अभी फुल लाइफ टाइम हाई लगाएंगे अभी। राइट राइट, पक्का पक्का। अभी Yes, जो sir. प्रश्न मैंने जय किशन जी से पूछा हाँ कि सर, मेटल, हेल्थ केयर, कैपिटल, टेलीकॉम, यूटिलिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल, हाँ इन सर। सेक्टर पे जो ये तीनों लोगों ने काम किया, अगर आपको कोई भी 2 सेक्टर की ही प्रायोरिटी रखनी हो, हाँ राइट, सर। मान लो आपके पास चॉइस नहीं है कि मुझे हाँ हाँ इनमें से सिर्फ 2 सेक्टर में निवेश करना है, तो हाँ आप सर। पहला कौन सा 2 सेक्टर निवेश करोगे? सर सबसे पहला तो मैं हेल्थ केयर को जाऊंगा, क्योंकि हेल्थ केयर में डॉक्टर लालपत लैब का जो काम चल रहा है वो जबरदस्त है। एक्चुअली Okay. लालपत लैब एक डेटा कंपनी है, जैसे आपने हमें सिखाया है कि डेटाबेस सब Right. डिसीजन होते हैं। तो लालपत लैब के एक्चुअली इंडिया में अनऑर्गेनाइज मार्केट काफी सारा है, और अभी ऑर्गेनाइज मार्केट में 30-40% भी काम नहीं है। और लालपत लैब का जो Right. पूरा वर्क शेड्यूल है वो नॉर्थ इंडिया में है, साउथ इंडिया में उसका प्रेजेंस कम है, तो इट हैज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उनका जो ऑनलाइन एप्स वगैरह है, मोबाइल एप्स, तो दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी बेनिफिट। मतलब पहले लैब में जाना पड़ता था, अभी कोई भी, समझो मैं पुणे में रह रहा हूँ, कोई मेरा रिलेटिव बड़ौदा में है, तो मैं यहाँ से ऐप से पैसे भर के अपॉइंटमेंट लेके, मॉम डैड अगर है तो उनका भी ब्लड चेक करवा सकता हूँ। आई विल गेट रिपोर्ट ऑनलाइन। तो टेक्नोलॉजी का इन्होंने बहुत बड़ा एडवांटेज ले लिया है। थर्ड थिंग, Okay. अच्छी कंपनी, Wonderful. अच्छी कंपनी का Right. जो लक्षण है कि मतलब उनके जो फ्रेंचाइजीज है उनको संभालना। तो लालपत लैब का अगर हम एनुअल रिपोर्ट पढ़े, तो लालपत लैब ने क्या किया है कि उनके जो फ्रेंचाइजीज थे, वो फ्रेंचाइजीज को जब प्रॉब्लम आई तो उनके रेंट रिविजन थे, जो जिन्होंने ये रेंट पे शॉप्स लेते हैं, तो उनको भी काफी सपोर्ट किया रेंट रीऑर्गेनाइजेशन में, और उनको क्रेडिट्स भी दिए। ये सब पॉसिबल हुआ, जैसे आपने सिखाया Okay. है कि डेट फ्री कंपनी है और कैश रिच है, तो ये ऑर्गेनाइज कर पाए। और जो छोटे बिजनेसेस थे वो लिटरली मतलब खत्म हो गए इसमें। तो लालपत लैब को उसका एडवांटेज मिला, और ये अभी स्टार्टिंग है। एंड सेकंड थिंग, लालपत लैब को मैं ज्यादा प्रेफरेंस फार्मा से दूंगा, क्योंकि फार्मा एक मैच्योर इंडस्ट्री है, 20-25-30-40 साल से चल रही है। लालपत लैब इमर्जिंग है, Right. तो इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है सर। हेलो। ओके। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में कौन सा कंपनी आप पसंद करोगे? सर एक वो बार सेक्टर में? सर वो चार्ट दिखाएंगे, थोड़ा सा ड्यूरेबल की कंपनियां दिखाएंगे, 1 मिनट के लिए प्लीज। वो एक्सेल शीट सर। हाँ अच्छा, एक्सेल सीट, यस यस। हाँ, या कंपनी के नाम भी दिखाए दो। सॉरी सॉरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल ही था। यस यस। हाँ सर, इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल में मैं आई विल गो फॉर पेज इंडस्ट्रीज एंड टाइटन। टाइटन तो राजा ही है सब इंडस्ट्री का, एंड अदर एप्रोच में उसका बिजनेस ज्यादा है। पेज इंडस्ट्री से भी ज्यादा मैं प्रेफरेंस टाइटन को दूंगा, क्योंकि पोर्टफोलियो बड़ा है। पेज इंडस्ट्री सिर्फ इनर गारमेंट के लिए है, नो डाउट वो Okay. बेस्ट क्वालिटी कंपनी है और अच्छा भी है। लेकिन टाइटन को जो एक बेनिफिट है नेचुरल, ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, एंड कुछ भी प्रॉब्लम Right. होता है तो टीसीएस के जो रेवेन्यूज है वो उनको सपोर्ट करते हैं कठिन समय में, वैसे पेज इंडस्ट्री को नहीं करते। एंड सिंगल यूनिफॉर्म प्रोडक्ट की जगह मैं प्रेफर करूंगा कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड रहे, क्योंकि एक सेक्टर में मंदी आती है बराबर। तो भी हाँ, Okay. तो उसका पूरा बेनिफिट टाइटन वाले ले सकते हैं। तो इसमें मैं डेफिनेटली इसमें जाऊंगा। लेकिन सर मैं स्लाइटली निगेटिव हूँ ये ब्लू स्टार या एसी की कंपनियों पे, क्योंकि जैसा ग्रोथ Okay. दिखना चाहिए वैसा दिख नहीं Okay. रहा है। वो सही बात है, आपका सही बात है। Yes, sir. लेकिन उसमें अभी थोड़ा डिस्काउंट भी देना चाहिए हमें कि इंडिया वो लोअर इनकम कंट्री है, बराबर ना? Yes, तो sir. अभी ऐसा नहीं है कि सबको ऐसी ले सकते हैं, पर जैसे हम Correct, एक्सपेक्ट sir. करेंगे आने वाले टाइम में इनकम बढ़ता है तो हर एक व्यक्ति अपने घर पे एसी लगाए, राइट? Surely, sir. Correct, sir. पर Correct. फिर वो डेटा देख के करना चाहिए, बराबर ना? Yes. Yes, sir. ओके, तो Hello. वंडरफुल, बहुत बहुत Yes, धन्यवाद sir. आपका भी मिलिंद भाई। Thank और you, sir. जो भी तीनों लोगों ने, उनको कोई एक टिप देके जाना चाहोगे? तीनों लोगों सर, को आपकी ओर से कोई हाँ, सलाह?
नहीं सलाह नहीं सर, तीनों लोगों का एक्चुअली इतने कम पीरियड में जो ग्रोथ किया उन्होंने आपके गाइडेंस के अंडर, वो अमेजिंग है। मैं सरप्राइज हूँ क्योंकि मेरे को भी 3-3 साल लग गए, लेकिन ये तीनों ने बहुत अच्छी स्पीड से काम किया है और जी जान से किया है। और सच में, और प्रेजेंटेशन भी उन्होंने अच्छा ही दिया है, क्योंकि अगर मेरे को 4 महीने का एक्सपीरियंस रहता तो मैं वो जो बोल रहे हैं वो भी नहीं बोल पाता था। सो आई एम ग्रेट, मतलब थैंकफुल टू एवरीबडी। उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया एंड आई विश बेस्ट ऑफ राइट। और आप सब का पूरा टीम है, ये जो टीम है इसको इसी प्रकार से बनाए रखेंगे मिलिंद भाई, है ना? आपका सपोर्ट भी सबको अच्छा मिला। आपको जय किशन जी है, अनुमेश ये टाइम सर मैं थोड़ा सपोर्ट, मतलब मैं खुद ही थोड़ा ये बीमार पड़ गया और मेरे को ही थोड़ा खराब लग रहा है, ये टाइम मैं कंट्रीब्यूट ज्यादा कर नहीं पाया, सॉरी सर। बराबर। पर क्या है मिलिंद भाई कि सपोर्ट भी कैसा पता है ना आपको, कि अगर ये अपने आप काम करेंगे तो ही ग्रोथ करेंगे, बराबर कि नहीं? एक वो हमने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि एक कुकुन में से जो तितली पैदा हो रही थी, तो उसको बहुत कष्ट हो रहा था निकलने में, है ना? तो बच्चे ने उसको हेल्प किया, तुरंत उसको बताया कि भी नहीं, उनको अपने आप डेवलप होने दो, तभी वो जिंदा रह पाएगी। तो ये तो चैलेंजिंग लाइफ है, अभी आगे बहुत चैलेंज अमोल को देखने हैं, आशीष को देखने हैं, तो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम आने दे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये जो लर्निंग कर रहे हैं वो अनमोल है, मतलब उसका प्राइसलेस है। ये जो चीजें सीख रहे हैं इतने कम उम्र में, और इनको सबसे ज्यादा एडवांटेज है कि इनका एज कम है, तो सबसे वो बात तो है। वो इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग ही इम्पोर्टेंट है। नॉलेज तो मतलब आज नहीं तो कल 2-4 साल में आ ही जाएगा, लेकिन टाइम रहना इम्पोर्टेंट है। सो दे आर वेरी मच लकी। करेक्ट। ओके, सो वंडरफुल, बढ़िया मिलिंद भाई, थैंक यू सर। और फटाफट आप भी ठीक हो जाइए, राइट? हमें अभी तो बहुत काम करना है आगे। नहीं यस सर, अभी कल से चालू हो जाएगा सर। आई एम इन फुल एनर्जी नाउ। वंडरफुल। ओके, और अभी हम क्वेरी लेते हैं थोड़ी, तो मैं चाहूंगा कि जो भी क्वेरी आती है उन पे जवाब अनुमेश जी प्रयास करें, राइट अनुमेश जी? देख पाओगे ना? मैं क्वेरी थोड़ी देख लेता हूँ कि किसी ने कुछ पूछी है क्या क्वेरी। शेख जैद, ओके, शेख जैद इज फ्रॉम हैदराबाद। उनका क्वेरी है, अनुमेश जी सर प्लीज व्यू ऑफ पेज इंडस्ट्री। तो पेज इंडस्ट्री के बारे में कुछ कहना चाहोगे अनुमेश जी? Sir, Page Industries is one of the good from a textile industry. I mean, it is actually they manufacture the Jackie. I mean, a lot of branded products, and it's a growing company. Their quality wise also it's one of the best companies. I think अभी शायद जय पहले आप बता रहे थे इसके बारे में. So it's a good company and from a growing sector. अभी शायद थोड़ा उनका because of this COVID it would have impacted, but I think it's a good company and from a good sector. It's yes sir, absolutely. So there is a fantastic growth, fantastic margin, consistent profit, और भला क्या चाहिए, बराबर की नहीं? वेरी लो इक्विटी, 11 करोड़ की इक्विटी पे 350 करोड़ का प्रॉफिट, दैट्स अमेजिंग, सो वंडरफुल। हर एक प्रकार से मेरे ख्याल से अच्छा है। प्रमोटर 48, पब्लिक 51 है, पर 51 की पब्लिक में देखो तो सही कौन कौन है? मोस्ट ऑफ देम आर FIIs and mutual fund companies. 25% कौन है रमेश जी? FIIs, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। या तो इंडियन से ज्यादा तो FII है यहाँ पे, है ना? रिटेल तो कितने हैं? खाली 9%। तो नो डाउट ये FII 25% स्टेज बना के बैठे। ये कब से बैठे? जब से पेज इंडस्ट्री एक छोटी सी कंपनी थी, और ये लोग तब तक नहीं निकलेंगे जब तक ये 1000 करोड़ की कंपनी ना हो जाए, है ना? Correct, sir. I mean, they are come here to make money, so they will sit on these companies. Correct. तो आज की जो बड़ी कंपनियां हैं ये भी बहुत बड़ी बनेगी। अभी तो इंडिया की बड़ी यानी 1.5 लाख करोड़ की कंपनियां बड़ी मानती हैं हम। 10-10 लाख करोड़ यानी बड़ा होता है।
राइट। तो हमारी बड़ी कंपनियां अभी छोटी है, स्मॉल कैप है दुनिया के सामने। अभी तो हमारी बड़ी कंपनियां बहुत बड़ी बनेगी, और हमारा Correct. स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों का जो झुंड है ना, इसे हम झुंड कहेंगे, वो बहुत कम है। अभी इंडिया को और बड़ी कंपनियां चाहिए, स्मॉल कैप और मिड कैप वाली। अभी कितनी है? खाली 600 कंपनियां है 1000 करोड़ की। कम से कम 3000 कंपनियां तो चाहिए 1000 करोड़ की। हो सकता है आप में से कोई ये कंपनी बनाए, या ऐसी कई कंपनी आने वाले समय में बाहर आएगी। 1000 करोड़ की कंपनी को हम बहुत ही छोटी कंपनी मानेंगे आने वाले 10 साल में। कितनी कंपनियां बड़ी बनने वाली है। ये जो पूरी इंडिया की जो लॉटरी लगी हुई है, जो लाइन लगी हुई है, 10 ट्रिलियन की ओर बढ़ेंगे। ह्यूज रिवॉल्यूशन होने वाला है। घबराइए नहीं, हर फॉल का पूरा फायदा उठाइए और आगे बढ़ते जाइए। बराबर रनवीर जी? Absolutely, sir. Absolutely. I think when I actually went through the your session, Yeah. we were in the just before the lockdown. It was. Okay. Yeah, March- correct. March We were at the end point. March 23rd ऐसे हमारे ऑफिसेस वगैरह they had given us to work from home and city was about to go lockdown. आप आए थे, I think आप निकलने के हाँ 2 दिन के बाद शायद फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गए होंगे। हाँ, 2 दिन बाद ही हम बेंगलोर में देखो रेस्टोरेंट में जाते थे, तो मैं और चिंतन 2 ही होते थे इतने बड़े रेस्टोरेंट में। तो एक्चुअली इट वाज ऑल ऑलरेडी बंद हो चुके थे। So we saw that one opportunity to invest. So उस टाइम पे we were discussing कि हाँ companies are hitting low, but we were just behind the news कि there will be one more further market will go down. तो उस चक्कर में we missed many of the companies, but we also took position in some of the companies. Wherever we felt it is still good to enter. यदि ऐसी बड़ी दुर्घटना हुई तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि चलो हो कि मुझे इतना नुकसान होगा, पर वो एक शॉर्ट टर्म नुकसान है। रिकवरी में फिर वापस पूरा रिकवर हो जाता है। बराबर कि नहीं? मेरे पे बहुत फोन आते थे कि पीयूष भाई बाजार गिर रहा है, मैं क्या बेच डालूं। कई लोगों ने कितने लोग पर ऐसा घबराने का जरूर नहीं है। देखो आज उन सबके पोर्टफोलियो कितने बढ़िया हो गए, राइट। हेमंत कुमार वर्मा जी का लिखना है, पीयूष सर इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट हाउ शुड वी डू एसआईपी? We should wait for market to go down. Should we wait for low price or keep on investing irrespective of price high? हेमंत जी, एसआईपी के लिए कभी मैंने मार्केट देखने को नहीं कहा है। एसआईपी वाले लोगों को तो हर महीना निवेश करते ही रहना चाहिए, है ना। और भगवान की दया से देखो 3 साल से पूरा बाजार करेक्शन मोड पे है। तो बाजार जहां करेक्शन में है, ये समय तो आंख बंद करके एसआईपी कंटिन्यू करता रहना चाहिए। एक लिस्ट बना दो, बीच में भी हमने 20-25 शेयर दिए थे एसआईपी के। ऐसे शेयरों में कंसिस्टेंटली हर महीना इकट्ठा करते जाओ, राइट। और टारगेट बनाओ कि मुझे आने वाले 10 साल में वोल्टास 500 इकट्ठा कर लेने हैं, मुझे डीमार्ट 100 इकट्ठा कर लेने हैं, राइट। मुझे इन्फो एच 100 इकट्ठा कर लेने हैं। फिर हर महीना लेते जाओ। टीटी के प्रेस्टीज इकट्ठा करना है। तो जितना भी करेक्शन मोड चल रहा है, टारगेट लेके चलो, हो सके उतना इकट्ठा करो, हर महीना लेते जाओ, राइट। ऑटोमेटिकली बढ़िया भाव पे इकट्ठा हो गए सब। अभी तो तेजी है ही नहीं। देखो जब तेजी आएगी तो कितना बढ़िया माहौल होगा। ये सारे शेयर 20-20 गुना 1.5-2 साल में बढ़ जाएंगे हमारी आंखों के सामने, पर तब पूरा गांव लेने को आएगा, राइट। यही वो समय है जब इकट्ठा करें माल, राइट सर। तो चलिए, धन्यवाद आप सबका। एंड इट वाज अ प्लेजर इवनिंग। आप सबके साथ अच्छा डिस्कशन हुआ। एंड अगेन हमने अब तक के Q1 के 3 पार्ट में डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट और एक सेक्टर पे डिस्कशन होगा, और निफ्टी पे डिस्कशन होगा, राइट। तो लगे रहिए, ये महीना हम ये सारे सेक्टर पे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ